Atma Namaste, Hare Krishna. Welcome everyone to this book study session on Bhagavad Gita. So, at the beginning, let me tell you a short introduction about myself. My name is Ram Dhakal. I'm a pranic healer, a basic pranic healing instructor from Guwahati, Assam. We have a center here in Guwahati, Senikuti, with the name of GMCKS Lightworkers Guwahati. So GMCK stands for Grandmaster Chua Koksui. That's the name of our teacher, who is the founder of modern pranic healing. And this book study session, whatever I'll be sharing with you or will be discussing between us, ये जो सेशन होगा इसका कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. So I'm referring to this Bhagavad Gita. So you can refer to any Bhagavad Gita you have. So वहाँ पे हम आप क्योंकि बहुत सारे तरह के गीता है मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास जो भी है आप उसको उठा लीजिए. हम श्लोक बाय श्लोक नहीं जाएंगे, but we'll go chapter by chapter. So we have around 18 chapters here. So probably we'll हमारे पास 15 या 18 या maybe 15 to 20 sessions we're going to have of 45 minutes approx. So whatever I'll be sharing with you, this is my understanding. So I request all of you to use your discernment. Do not take things blindly. Think on your own, study by yourself, validate it. And if you find it acceptable for you, then you can accept it. Okay, that's the approach that we always follow. And I have read Bhagavad Gita by various authors. A few of them which has inspired me is Bhagavad Gita or Gita Darshan by Osho. Karma on the Gita Understanding by Annie Besant. Even I have read Gita by Mahatma Gandhi, Gita by Swami Vivekananda. So ये सारा चीज, all this study and understanding, and definitely all the credit understanding of these teachings goes to my teacher Grandmaster Chua Koksui. Although he didn't spoke much about Gita, but energy का understanding, soul का understanding, जिसके basis पे I'm able to understand it more, and which I'm going to share with you, especially the understanding on karma, which is very, very clear in our pranic healing school. So उसको हम कर्म योगा के साथ connect करके we'll try to understand during this process. And you can ask any questions if anything comes to your mind. We are not preaching any religion. Basically, pranic healing is not a religious organization. Rather, whatever religion you belong to, if you learn pranic healing, if you understand how energy works, if you are a Hindu, you can become a better Hindu. If you are a Muslim, you can become a better Muslim. Okay, whatever culture or creed you belong to, you will have deeper understanding of your own culture. So, and definitely please use your intelligent evaluation. And 40 minutes ka lagbhag hum session will talk about it. Then last 5 minutes, 7 minutes we'll keep for question and answers if you have. Or you can put your questions in the WhatsApp group also, which way. Okay, so let's start with a short prayer. Please put your hands on heart. Slowly inhale and exhale. You can follow any prayer. You can do any of your prayer that you used to do. Or you can follow me mentally to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the holy gurus, all the saints, all the great ones, to Lord Krishna. Thank you for your blessings, guidance, help, and protection. Thank you for blessing us with divine light, divine love, divine power, with the ability to understand these teachings and apply in our life. Thank you.
Okay, so to again to remind you, I'm not a Sanskrit scholar, so few of this no, my understanding is based on the concept basically. So I'm not going to talk about all this word by word meaning. So uh, I think that we can Google it out also. That's not a big deal. So let's start with the first chapter of Bhagavad Gita, which is known as Arjuna Vishada Yoga. Okay, before going into this, मैं आपको थोड़ा सा एक concept बताना चाहता हूँ कि हमारे what we understand about this concept of Trimurti. Okay, कृष्ण कहाँ से आते हैं? उनको like we say he's the avatar of Vishnu in Hinduism. So basically, God के तीन क्वालिटी है according to different traditions. If you know, like in Hinduism, we call divine is Brahma, Vishnu, and Shiva. So these are three manifestations or qualities of God. Brahma is intelligence, Vishnu is love, and Shiva is power. And now the same tradition, same understanding, दूसरे culture में, दूसरे religion में भी है. In Islam, it is called Al-Wadud, Al-Khaliq, and Al-Muqtadi. In Christian, it is called the Father, Son, and the Holy Spirit. और अगर हम simply इसको समझें, it's love, light, and power. It's not that कि तीनों separate है, these three are one, but to understand the quality, हम इनको तीन तरीके से समझ सकते हैं. So Vishnu being the love का काम होता है to preserve or to protect or to nurture. तो ब्रह्मा create करते हैं, विष्णु उसको nurture करते हैं, protect करते हैं, and Shiva creates the destruction. That's basically creative destruction because नया आने के लिए पुराना जाना पड़ेगा, right? So that's creative destruction. Now this thing is applicable in everywhere wherever there is life. आप अपने mental level पे भी सोचिए, हमारी ability है, we can create a thought, that's Brahma quality in us. We can hold up or nurture a thought which is good for us. Sorry for the interruption. Yeah. So we can nurture a thought which is good for us. That's Vishnu quality. And we can destroy or disintegrate or remove a thought which we do not want in our life. Unfortunately, many of us don't know how to destroy or remove a thought. That is what is taught in pranic psychotherapy. Okay. So basically, our mind also has this capacity. Now look into a cell also in our body. It also has these three phases of life. Supposingly, let me take an example of hair. So this the three phases of hair growth is known as anagen, telogen, and catagen. The hair grows, like first the sprouting of the follicle, then it grows for 27, 28 days, and it falls down in 2-3 days. So that's a cycle. So it's like creation, sustenance, and destruction. और ये लाइफ के हर फेज में हमको देखने को मिलता है. कोई भी, even if you go into business, something we create, we make our own idea, अपना आइडिया लगाते हैं, फिर उस बिजनेस को हम नर्चर करते हैं, टेक केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, एंड सम डे व्हेन सिचुएशन चेंज होता है, हम उस बिजनेस को रीमॉडलिंग करते हैं. नो वी मर्ज, we adopt new styles of business, probably with a change, we change the name, we break few things. हर चीज में होता है. घर में भी आप देखिए, घर बनाया जाता है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है, फिर उसको रीमॉडलिंग किया जाता है. So this is how things have been done. These three qualities are there in each and every our life. लेकिन विष्णु का जो रोल है, that's basically love. Love का रोल होता है to nurture, to protect, to sustain life. इसीलिए according to Hindu traditions, Vishnu has to come down to earth, and that is what is known अवतरण करना, और वहां से अवतार का concept आता है. So we have 10 avatars as per that. Vishnu is Vishnu as a first he incarnates as a yeah. Vishnu sorry. Am I able to you? Is there any disturbance?
Yes, let me continue. So Vishnu incarnates as Lord Krishna. So Krishna नहीं, Krishna. Okay. Now let's come to Krishna. Krishna के जो qualities हैं, like the name Krishna itself is meaning is all attractive. एक और मीनिंग होता है कृष्ण का, दैट इज कॉल्ड डार्क. तो कुछ लोग कहते हैं कि श्याम बरन है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया था. सो इफ यू अंडरस्टैंड द युगा कॉन्सेप्ट, कृष्ण जब पैदा हुए थे उस टाइम अर्थ का जोडियक था टॉरस, एंड द ऑपोजिट साइन ऑफ टॉरस वाज स्कॉर्पियो. और जोडियक का कॉन्सेप्ट ये होता है, जिस जोडियक में अर्थ रहता है वो एनर्जी अर्थ में आती है. दैट्स व्हाई कृष्ण वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बुल, एंड उनके जो फॉलोअर है उनको गोपी कहा जाता था. So those were people who are involved in taking care of bulls or the cows. And the opposite side, what is the, and okay, there is a question. Just a moment. There is what is the understanding behind the roles of every soul in a 5,000 years cycle? 5,000 years, I'm not sure, because युगा, एक युगा concept होता है 4 युग, so it's 24,000. 5,000 concept, sorry, I'm not aware of. Okay, let me think if I can understand and come back to this. So Krishna का जो meaning है, that is darkness, or who is all magnetic, and the blue pearl, sorry, the feather represents the peacock eye, that represents a blue pearl, which is an entry point to the inner world. Flute represents the Sushumna Nadi, and the whole represents the chakras that we have. तो इस तरीके के कुछ अंडरस्टैंडिंग है. ओके, सो अर्जुना, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अर्जुना, दैट इज कॉल्ड अरिजु. अरिजु का मतलब वो जो सीधा नहीं है. अभी कौन सीधा नहीं है वो हम समझेंगे ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ गीता. नाउ इफ यू लुक इनटू द गीता, आप प्रोबेबली इस कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं हु इज कृष्णा. कृष्णा इज बेसिकली द सोल और द हायर सोल और द गॉड. अर्जुना इज द जीवात्मा, that which we all are, जो कि हम लोग हैं. And all the other people who are at the lower level of consciousness, like Duryodhan is you can call him at the animal, जिनमें animal tendencies ज्यादा होती है. So basically ये जो विषाद योग का चैप्टर है, it's a state of mind of Arjuna where he has a conflict कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले इसका शुरुआत होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है. सो धृतराष्ट्र क्या है? एक अंधा राजा है. नाउ अंडरस्टैंड, all the questions, all the books, all the scriptures are normally started by some questions, and the questions are normally asked by the people who are spiritually blind. So physically, Dhritarashtra can be a symbolize of a person who is spiritually blind, and he's asking to Sanjay. अभी यहाँ पे संजय कौन है? संजय is a person who was blessed by वेद व्यास, who could see कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और राजसभा में बैठ के वो अपने राजा को बता रहा है कि तो that ability of seeing at a distance level is known as दिव्य दृष्टि in Sanskrit, जिसको इंग्लिश में clairvoyance कहते हैं. Now clairvoyance is a German word. If you understand the meaning, it means clear sight. Okay, and there were many clairvoyants, not only Sanjay. अगर आप origin of Aratic yoga book पढ़ते हैं तो मास्टर चुआ ने जो प्राणिक हीलिंग डेवलप किया, that time he had 3 clairvoyant friends, Mang Davon, Mike, Mang Nenep. उसी तरीके से even कुछ साल पहले in America there was a person known as Ted Sirius. Scandinavia में there was a person who could see, who could hear thoughts. ये जो psychic abilities होते हैं, that were real at those time. आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कुछ हद तक clairvoyant है. अभी clairvoyance के भी level हैं. There are 4 types of clairvoyant people actually, जो आमने सामने आपका energy देख सकते हैं. That is also clairvoyance. They can see the chakra, they can see the meridians. Okay,
and there are other people like who can see at a distance also, who can see पास्ट में जाके या फ्यूचर में जाके भी, तो ये भी एक लेवल का क्लैरोमांस है। तो संजय was not an enlightened person or a highly evolved yogi. He was blessed by Vedyas who could see or witness the war. Yes, ज्योति, जैसे कि आपने कहा संजय was a he was able to, yeah, what Sanjay a witness of the war? Yes, he was a witness of the war. So संजय बोलते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लोग इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए, एंड दोनों तरफ के सेनाएं, अभी कितने कितने सेना थे, इफ यू अंडरस्टैंड, अक्षोहिणी के हिसाब से उस टाइम पे कैलकुलेशन किया जाता था। इफ यू स्टडी, if you can Google it out, so there may be people around 20 lakhs people उस समय में, soldiers were part of this war. अब यहाँ पे हम श्लोक बाय श्लोक नहीं जाते हैं, it's not that much important. यहाँ पे क्या होता है, दुर्योधन, अभी अपने दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारे कौन कौन लड़ाई में आए हुए हैं देखिए। माइटी धृष्टकेतु, दैत्यकीतान, काशीराजश्च वीर्यवान. So let's not forget the fightful like धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजीत. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, दुर्योधन सबसे पहले अपने ऑपोजिट में कौन कौन बड़े बड़े योद्धा हैं उनका नाम लेता है, अपने बारे में वो बाद में बोलता है। So this is one important understanding probably. दुर्योधन में बहुत सारी अच्छी गुण नहीं थी, बुरी गुण थी, बट एक अच्छा गुण था, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, क्योंकि दूसरों की अच्छाई बोलने देखने के लिए भी आप में, मतलब जो लोग इंफीरियर होते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनमें, वो सबसे पहले अपनी बड़ाई करते हैं। अगर वो दूसरों की बड़ाई कर रहा है, दैट मीन्स ही डिडंट हैव दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. एंड then starts the Sankhanath. अभी Sankhanath पे I would like to explain few things here. कि सबसे पहले युद्ध का शंखनाद भीष्म करते हैं, and everyone had a अलग अलग शंख, उनका नाम अलग अलग है. I will not go into that. Basically दुर्योधन का जो असेसमेंट है वो कह रहा है कि देखिए उधर कौन है, इधर कौन है, मेरे पास भीष्म है जो अपने उनके इच्छा के बगैर कोई उन्हें नहीं हरा सकता, कर्ण है, और हमारी पूरी सेना सुरक्षित है, जबकि ऑपोजिट में भीम है. नाउ ही इज कंसिडरिंग भीम एज हिज एनिमी, नॉट एनीवन एल्स, क्योंकि उसको शायद लगा होगा दुर्योधन को कि कृष्ण को तो वो भूल ही गया कि कृष्ण तो वेपन नहीं उठाने वाले, सो ही जस्ट अ चैरियट और सारथी है. अर्जुन को तो कर्ण संभाल लेगा, बाकी बचा भीम, उसको मैं संभाल लूंगा. सो दिस वाज हिज कैलकुलेशन, जो नॉर्मली हम कोई भी काम करने से पहले एक अपना असेसमेंट करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. बट ही इग्नोर्ड लॉर्ड कृष्णा देयर बिकॉज, एंड डेफिनेटली उसका ये सबसे बड़ा मिस्टेक था जिसके वजह से उसको हारना पड़ा. सो कई बार हम लोग ये जो एक हिडन फोर्स होता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट हिडन फोर्स को हम इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज मे बी एट टाइम्स रीजन व्हाई वी फेल. असमिया में कहावत है, भवा कथा नहय सिद्धि, बात दसे कना विधि. मतलब many times things doesn't happen as we plan because there is a God, okay, there is some divine power which can intervene. So many a time we forget that. Okay, so भीष्म शंख फूंकते हैं, उसके बाद कृष्ण शंख फूंकते हैं. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कृष्ण, वाई कृष्ण, क्योंकि कृष्ण वाज नॉट वहां पे लड़ाई के लिए आए भी नहीं थे, कृष्ण सेनापति भी नहीं थे, उन्होंने शंख क्यों फूका? तो इसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग यह है, कृष्ण न्यू दैट पांडव की पूरी सेना उन पे समर्पित है, और वही साबित हुआ, पहले कृष्ण ने बजाया फिर पांडवों ने बजाया. तो बेसिकली द सिंबोलाइज होता है कि कोई भी काम करने से पहले हम अपना सरेंडर गॉड के प्रति रखते हैं, तो वी हैव नो मोर चांसेस ऑफ विन एंड वी आर एट पीस. वो शांत थे, शांति में थे.
चुनौती की स्वीकृति, दिस इज व्हाट बेसिकली कृष्ण डिड, एंड पांडव जस्ट फॉलोड कृष्ण. So going forward, I think we have only 10 minutes left, so going a little fast. Yes. अभी क्वेश्चन आता है, why Arjuna goes to the विषाद, state of विषाद. विषाद मीन्स उनको इतना ग्रीफ क्यों होता है. लड़ाई ठीक शुरू होने वाली है और वो बोलते हैं कि मुझे देखना है दोनों साइड में कौन कौन है. एंड ही कृष्ण बोलते हैं ठीक है चलिए. एंड जब वो देखते हैं सारे अपने लोग हैं, इधर भी अपने लोग हैं उधर भी अपने लोग हैं, एंड ही थॉट कि नहीं मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ. भीष्म को देखते हैं जिनके साथ वो बचपन से उनके गोद में पल के पड़े हुए. सो ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग, उनके हाथ से धनुष बाण गिर जाता है. तो अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू माय स्टडी एंड वेरियस बुक्स, बेसिकली ये जो अर्जुन है, अर्जुन का बॉ है, बॉ सिंबलाइजेस द माइंड एंड एरो सिंबलाइजेस द थॉट. Mind has a power, okay, and we can think, we can take decision, but mind loses power at certain situation. Situation कैसा ऐसा, ये जो situation crisis का situation अर्जुन के पास आया, दोनों तरफ अपने लोग दिखे. Now what will do, understand me, बहुत बार लोग कहते हैं कि कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को जबरदस्ती लड़ाई पे घसीटा. अर्जुन तो एक धार्मिक इंसान की तरह बात कर रहा था कि लोगों को क्यों मारना ना, इससे पाप चढ़ेगा, मैं नरक में जाऊंगा, एंड ये बहुत सारी चीजें अर्जुन बोल रहे थे. बट कृष्ण पर वेरी बहुत इंटेलिजेंटली कृष्ण को समझ में आ रहा था कि अर्जुन सारा बहाना है. अगर यहाँ अपने लोग नहीं होते, जान पहचान के लोग नहीं होते, तो सबको वो मार सकता था. So that means the problem is not killing with people. The problem was my people. So it is basically his own attachment or identification that was a problem. इसी को हम ममत्व कहते हैं, इसी को हम अटैचमेंट कहते हैं, इसी को हम आसक्ति कहते हैं. तो बेसिकली इट वाज द आसक्ति ऑफ अर्जुना which was reason for his vishada. I hope things are okay. Is there any disturbances? So let me continue. सच में अगर अर्जुन अहिंसक हो गए होते तो शायद कृष्ण अर्जुन को रोकते नहीं, बोलते ठीक है तू लड़ाई नहीं करना चाहता है छोड़ दे. बट कृष्ण सॉ दिस दैट अर्जुन को अटैचमेंट हो गया, मोह हो गया, और ये मोह की पराकाष्ठा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उसने देखा कि अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा. दैट्स व्हाई बेसिकली मोह का एग्जांपल क्या होता है, हमारा माइंड का नेचर है, हम बीच में नहीं ठहर सकते. इधर हम अटैचमेंट में जाते हैं, आकर्षण में जाते हैं, या फिर विकर्षण में जाते हैं. या तो हम किसी चीज के पीछे भागते हैं या तो हम किसी चीज से भागते हैं. हम बीच में नहीं रह सकते. बीच में रहने की जो स्टेट है इसको मिडिल वे कहा है लॉर्ड बुद्ध ने. एंड दैट इज एक्चुअली दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मॉडरेशन by Grandmaster in the teaching of soul workshop. So moderation चाहिए हमको. Actually mind कभी moderate नहीं हो सकता. Mind either is this side or that side. एक example, I'll share a short joke with you. This joke I have shared few years ago also. एक mental asylum में there was a person in the jail, एक सेल में. So एक नेताजी देखने गए, देखा वो लोहे का ग्रिल पकड़ के बोल रहा है लैला लैला लैला. ओके, नेताजी ने पूछा इसको क्या हुआ. नहीं, इसको एक लड़की से प्यार था लैला, उसने इसको छोड़ के चली गई तो ये पागल है. ठीक है. फिर 2-4 सेल अंदर गए, एक और इंसान वैसे ही सलाखे पकड़ के रो रहा है, बोल रहा है लैला लैला लैला. अभी नेताजी और सरप्राइज हुए, बोले ये और ये लैला सेम है. बोले हाँ सेम है. ये कैसे. बोले ये वो लड़की, ये वो आदमी है जिससे लैला की शादी हुई. ओके, द मीनिंग इज बेसिकली द वन हु हैज नॉट, उसको लैला नहीं मिली वो भी पगला गया, उसको लैला मिल गई वो भी पगला. बेसिकली माइंड का नेचर ये है तो कोई चीज मिले तो भी उब जाता है, कोई चीज नहीं मिले तो भी क्रेविंग होता है. सो दिस आर द टू स्टेट्स ऑफ अ माइंड. एंड इफ
we don't know basically the middle way. The middle way is or not actually done by mind. The middle way or the moderation is done by the soul. So this is what we will understand. इसीलिए कृष्ण अल्टीमेटली द एंटायर टीचिंग देते हैं ताकि उसमें अर्जुन में वो मॉडरेशन आए. ओके, सो अटैचमेंट वाज द रियल कॉज फॉर हिज ग्रीफ बिकॉज ही सॉ दैट वो जो करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है, दैट वाज आत्महत्या, दैट वाज सुसाइड. क्योंकि आप नॉर्मली कोई भी इंसान बड़ा सा घर बनाता है या कोई अचीवमेंट करता है लाइफ में, वो अपने लिए कितना होता है और दूसरों के लिए कितना होता है. आप देखिए नॉर्मली वी वांट टू शो ऑफ, वी वांट टू शेयर. अगर शेयर करने के लिए कोई नहीं होता तो फिर आपको कोई मजा नहीं है. ये आपको बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट हो गया एंड इफ देयर इज नो वन टू शेयर प्रोबब्ली देयर इज नो मजा नहीं आता है. फिर अगर आप you have bought something new, a very costly phone, and if you are not able to show it to someone else, I mean, this is the reason why now social media is growing too much. No, people, everything is सब कुछ दिखाना है लोगों को. So that's the nature of our mind basically. और जहां हमको लगता है कि मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मेरा अचीवमेंट क्या काम का. That was the reason for his विषाद. So the conflict, basically what I'm trying to tell you here is at the end is Arjuna is all of us. हम सब अर्जुन हैं और हम सब इसी कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं. हमारे में जैसे वहां पे दूसरे लोग भी थे, दुर्योधन भी था, बाकी लोगों को विषाद क्यों नहीं है, उनको अपने लोग क्यों नहीं दिखे, क्योंकि दे वर इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. समझ लीजिए वो एनिमल लेवल पे है, अर्जुना ह्यूमन लेवल पे है. वो नाइदर एनिमल है नॉट गॉड. कृष्ण के लेवल पे भी वो नहीं पहुंचा है. So that basically Arjuna symbolizes Jivatma, which is always in conflict, and Krishna symbolizes Atma or the soul, which is always clear. उनको उसको पता है क्या करना है, with a clarity of mind, with lot of power, because soul has a power of God. And Duryodhan, you can call it, is at the level of animal. तो ये तीन हमारे अंदर भी एनिमल नेचर है. कभी कभी इसीलिए लोग अल्कोहल पीते हैं, तो एडिक्शन करते हैं, सो दैट दे कैन बिकम एनिमल अगेन. तो उसका एक मोमेंटरीली मजा आता है. लाइक वी ऑल्सो नो इग्नोरेंस इज ब्लिस, so knowing nothing is blissful at times. So that's the animal state in us. And जब हमारे अंदर knowledge आता है, we become intelligent. With intelligence and knowledge there comes pain in us. जब चीजें दिखती है हमको तकलीफ होती है, हमको पेन आता है. So that is what is a state of Arjun. उनमें वो थोड़ा सा अवेयरनेस भी है, थोड़ा सा लोअर नेचर भी है, गुस्सा भी है कि द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ. So he is in a dualistic state कि क्या करे. एंड कृष्ण को देख के फिर उसको उनको अलग सा एक फीलिंग लगता है कि ए ह्यूमन, ए पर्सन कैन इवॉल्व एंड बिकम लाइक कृष्णा. तो उनको कृष्ण बनने का मन भी करता है, कृष्ण जैसा होने का मन भी करता है. तो ये डुअल स्टेट है. वी ऑलवेज इधर कभी कभी लगता है कि हम सोल लेवल पे चले जाएं, बहुत शांति शांति है, कहीं पे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लैरिटी है. और कभी कभी लगता है कि सब कुछ होश अपना बंद करके we become like an animal. That's the conflict of human. That is a conflict of Arjuna that he is going through. So, but basically, if there is darkness में दो लोग ही श्योर हो सकते हैं. एक जिनके पास लाइट हो, that is Krishna. दूसरा जो अंधा हो, that is दुर्योधन. एंड जिसके पास आंख हो और लाइट नहीं हो, वो कंफ्यूज रहेगा, इधर उधर टकराएगा. दिस इज व्हाट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस विषाद योग. लेकिन यहाँ पे कृष्ण उसको ये नहीं बोलते. जैसे हम आज अगर कोई इंसान बोलेगा यार मेरे को कपकपी हो रहा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते ठीक है तू रिलैक्स कर, अभी मत कर, ब्रेक ले ले. बट कृष्ण नहीं बोल रहे कि ब्रेक ले ले, रिलैक्स कर. कृष्ण उसको बहुत क्लियरली समझाते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज इन द सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में कृष्ण पहले सांख्य योग समझाते हैं. सांख्य योग इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सोल. तो जो हम वी आर गोइंग टू टॉक इन नेक्स्ट
session. According to my understanding, Gita is spiritual book less, psychological book ज्यादा है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हम हमारे लाइफ में यूज कर सकते हैं. वी ऑल आर अर्जुना. ऑल वी नीड टू गिव इज हमारे लाइफ का डोर कृष्ण के हाथ में देना है, कृष्ण को सारथी बनाना है. दैट मीन्स वी नीड टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द सोल. एंड ये जो रथ है, रथ इज बेसिकली आवर बॉडी. जो 5 घोड़े हैं वो हमारे पांच इंद्रियां हैं. ओके. And if we live according to soul awareness, by remembering who we are, then we can win the war of Mahabharata. That is what is life, जो हमारे चारों ओर चलता है. Okay. So with this, I will. We have some more minutes. एक और चीज होता है, आपको ये सवाल आ सकता है कि you may think why हम अगर इस महाभारत में हैं तो हमारे अंदर वो अवेकनिंग क्यों नहीं आता. दिस क्वेश्चन में कम टू यू बिकॉज बट हमारा प्रॉब्लम, हमारा लाइफ में क्राइसिस इतना इंटेंस नहीं होता. हमारे लाइफ में क्राइसिस भी इंस्टॉलमेंट में आते हैं और हम एडजस्ट करते चले जाते हैं, छोटे छोटे चीजों में एडजस्ट करते हैं, या तो हम सप्रेस करते जाते हैं अपने अंदर, और वो सप्रेशन हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है इन द लॉन्ग टर्म. सो लाइफ को एक होलिस्टिक व्यू से देख के कि ये सफरिंग है, जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है, दिस इज व्हाट हैपेंड विद बुद्धा. ही सॉ दैट लाइफ इज अ सफरिंग, देन ही टुक द डिसीजन. उन्होंने जो भी किया उसके बाद वी ऑल नो द स्टोरी. बट वी हैव अ हैबिट ऑफ एडजस्टिंग विद द सिचुएशन एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट किल्स अस. प्रॉब्ली आपने वो मेंढक वाली स्टोरी सुनी होगी. नो, हैव यू हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ मेंढक, जहाँ पे एक मेंढक को पानी में डाल के धीरे धीरे गर्म किया जाता है और मेंढक पानी के साथ अपने को एडजस्ट करता रहता है. एंड एट लास्ट जब पानी उबलने लगता है तो मेंढक के पास इतना एनर्जी नहीं बचता कि वो जंप कर सके, जबकि मेंढक का सबसे पहला नेचर होता है जंप करना. अर्जुन को यहाँ पे क्या हुआ, उसको सीधे गर्म पानी पर डाल दिया गया, तो जंप किया तो कृष्ण उसको पकड़े, उसको समझाए. लेकिन हम जंप नहीं कर पाते, हम एडजस्ट करते चले जाते हैं लाइफ से, क्योंकि हमारा लाइफ में इतना इंटेंस क्राइसिस नहीं होता है. और जिनके लाइफ में इतना इंटेंस क्राइसिस होता है उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है. ओनली थिंग इज दैट उस टाइम पे हमको एनिमल नेचर पे नहीं जाके अपना जीवन का बागडोर सोल या गॉड के हाथ में देना चाहिए. Okay, this is what I wanted to say. Is there any point I'm missing? Just give me a minute. So basically the understanding is why Vishad Yoga. This is same meaning that Buddha used to say if there is suffering in the world. If you understand by esoteric science also, अर्थ को the world of suffering कहा जाता है. हम यहाँ पे आते ही हैं सफर करने के लिए और उस सफरिंग के थ्रू सीखने के लिए. बट इफ वी डोंट लर्न, दैट मीन्स वी आर नॉट awakened, we are sleeping, we are like people walking on the sleep. हम ठोकर भी खाते हैं तो हम सीखते नहीं हैं, तब फिर life becomes tough. If you read Bhagavad Gita, बार बार कृष्ण एक चीज बोलते हैं. Why am I telling you this? Why Krishna is resembling the soul is basically बार बार कृष्ण बोलते हैं कि अगर आपको, मैं ही आपको मुक्ति दे सकता हूँ. सर्वधर्मन परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज. That means if we want to reach to God or any higher guru, Sadguru, we have to go through soul. Soul जो है हमारा, वो that is the divine self, which is a gateway to the inner world. The same thing has been said by different prophets in their teachings, but we always contradict because we identify with the personality of Krishna. जैसे भगवत गीता में आगे आता है, अर्जुन पूछते हैं कि आप बोलते हैं आपने ये ज्ञान, गीता का ज्ञान सन गॉड को दिया, आपने ये गीता का ज्ञान मनु को दिया, आपने ये गीता का ज्ञान बहुत कई सारे युगों के पहले के राजाओं को दिया, बट आप तो अभी पैदा हुए,
उस वक्त कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा, उसी तरह आप भी थे, रहेंगे. दैट मीन्स ही इज सेइंग द इमॉर्टल नेचर ऑफ द सोल. और जो इमॉर्टल नेचर ऑफ द सोल है उसी को सनातन कहा गया, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा. और उसी से सनातन कल्चर आया, सनातन धर्म आया. उसी को हम लोग, अगर हम हमारे अंदर की उस सोल की इमॉर्टल नेचर को एक्नॉलेज नहीं करते, then I don't know whether can we call ourselves Sanatani or not. इसीलिए जब कोई इंसान मरता है, हमारे कल्चर में हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है. Ram also means the soul. Ra means light, Ma means the body. The light in the body is what is soul. And राम नाम सत्य है का मतलब भी होता है कि सोल कभी नहीं मरता. शरीर मरता है बट सोल नहीं. That is the meaning of Ram Nam Satya. What is Sanatan? Sanatan means eternal, which was there, which will be there, and which is there. आप हम सब सोल हैं. हम इनकारनेट हुए हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी में. एंड जिस तरह एक कपड़ा पुराना होने के बाद वी चेंज द क्लोथ, वी वेयर न्यू क्लोथ, same way soul changes the body. This is what is described in next few chapters of Gita. एक और अंडरस्टैंडिंग ये है, सनातन वर्ड ऑल्सो हैज केम फ्रॉम सनत कुमार. तो वो एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू थियोसॉफी. प्लेनेट अर्थ के रक्षक है सनत कुमार. सनत कुमार को हिंदुइज्म में हम कार्तिकेय बोलते हैं. सनत कुमार से जो टीचिंग आई है उसको सनातन कहा. तो दिस इज अनदर अंडरस्टैंडिंग. सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अभी किसको आपको एक्सेप्ट करना है, यू कैन यूज योर ओन. Any questions so far? This basically विषाद योगा में एक चीज है, there is suffering in the world and suffering हमको झकझोर देता है, हमको लाइफ की टफ साइड को दिखाता है. और जब सफरिंग होती है, जब पेन होता है, जब हर्ट होता है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है. सो जब सफरिंग आए तो आपको क्या करना चाहिए, हमको अपने लाइफ में कृष्ण को बुलाना चाहिए. द वे टू कॉल कृष्णा इज मेनी वे. जैसे आप यू कैन प्रे टू कृष्णा सो दैट देयर इज सोल एनर्जी कम्स टू यू. You can do soul affirmation, you can meditate. So there are many other ways. And कृष्ण कहाँ से आए हैं, विष्णु के अवतार है. और विष्णु कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में. ना द वर्ड वैकुंठ इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. कुंठा अगर हमारे दिल में ना हो तो हमारा दिल, हमारा हार्ट खुद वैकुंठ बनता है. और जहाँ वैकुंठ है वहाँ विष्णु और कृष्ण विराजमान है. Okay, this is so far is my understanding on this. So if you have any questions, you can ask. Otherwise, let's close for today. If you understand, like आपने अगर कई सारे ऑथर की बुक पढ़ी है, जैसे एक ऑथर है फ्रेडरिक नीत्शे. तो फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं ह्यूमन इज अ ब्रिज. इंसान एक ब्रिज है. और ब्रिज या सीढ़ी के काम होते हैं क्या, सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते हैं, सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं, या फिर आप सीढ़ी में बैठ भी सकते हैं. सो अर्जुन इज दैट पर्सनालिटी वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिम टू बिकमिंग कृष्णा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिम सो ही कैन गो बैकवर्ड एंड बिकम दुर्योधन. तो हम सब में वो पॉसिबिलिटी है कि हम अपने अंदर वो सोल एनर्जी ला सकते हैं. वी कैन ब्रिंग दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अस, वी कैन ब्रिंग दैट डिविनिटी इन अस, और वी कैन गो बैक एंड बिकम लाइक एन एनिमल, बिकॉज वी ऑल नो ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो एनिमल नेचर हमारे में थोड़ा बहुत है, हमारे में गुस्सा है, हमारे में फियर है. ऑल दीज नेचर्स आर देयर. सो वी ऑल हैव अ चॉइस. ठीक है. सो yes, is there any question? Intriguing. Okay, what is Sanatan? I think I have explained that to you.
According to my understanding, let me answer your question. Exactly, I don't know what you are asking. Maybe you can be more डिटेल कि ये 5000 साल वाला साइकिल बेसिकली युगा का जो कॉन्सेप्ट है which was explained by Yukteswar Giri in the book called Holy Science. उसमें क्या है it's a circle. So कली युग से now we are again moving towards द्वापर युग. And कली से द्वापर में there is a transition period of around 200 years. So according to that calculation, हम लोग already we have already entered the द्वापर युग. So 5000 साल का cycle, I am not sure what you are asking, but every yuga is around 2500 साल का होता है. And सबसे लंबा होता है आपका सतयुगा because it covers the 2 windows together. Yes, Gita talks about all kinds of yoga. आपको क्या एक्सेप्ट करना है इसमें? ये दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज व्हाई आज से 2000 साल के जितने भी कल्चर या रिलीजन, जितने भी प्रॉफिट, जितने भी गुरुज आए, उन्होंने सबने क्यों भक्ति पे ज्यादा जोर दिया? बेसिकली लास्ट 2000 साल अर्थ वाज इन पाइशियन एज. ओके, पाइशियन एज वाटर साइन में था अर्थ. तो वहां पे क्या होता है, इमोशन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इमोशन को प्यूरिफाई करने के लिए डिवोशन सबसे अच्छा टूल होता है. इसलिए जो भी टीचर आए अर्थ में सिखाने के लिए, दे टॉट डिवोशन मोस्टली. दे हैव गिवन प्रेफरेंस टू डिवोशन बिकॉज डिवोशन कैन प्यूरिफाई आवर इमोशन. लेकिन अभी प्लेनेट अर्थ एक्वेरियन एज में प्रवेश कर रहा है. Aquarian zodiac. Okay, let me tell you. Can you just mute yourself? Someone, yeah, your voice is disturbing. Okay, let me tell you very short concept here. Zodiac का concept कहाँ से आया? हर साल आप वर्नल इक्विनॉक्स के दिन 2 बार आते हैं साल में वर्नल इक्विनॉक्स. यू कैन चेक ऑन द गूगल कब आता है. आप ईस्टर्न स्काई में अर्ली मॉर्निंग अगर देखेंगे बिफोर सनराइज, यू विल सी ग्रुप ऑफ स्टार्स. Now this group of stars are known as constellation. Okay, so constellation, हर constellation का कुछ अलग एनर्जी होता है और एक जोडियक, and that is known as zodiac. वहां से जोडियक का कॉन्सेप्ट आया. अर्थ का जोडियक अभी एक्वेरियस है. एक्वेरियस इज अ एयर साइन. इससे पहले था पाइसेस, दैट वाज अ वाटर साइन. सो वाटर साइन बेसिकली इमोशन को सिंबलाइज करता है. इसमें इमोशन ज्यादा होते हैं. इसीलिए इमोशन को स्टेबलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जितने भी गुरु आए, प्रॉफिट आए, उन्होंने डिवोशन पे ज्यादा जोर दिया, लोगों को डिवोशन सिखा. अभी क्या, वी आर एंटरिंग इनटू द एक्वेरियन एज, दैट इज अ एयर साइन. फ्रॉम वाटर साइन वी आर एंटरिंग टू एयर साइन. वाटर साइन में एक और चीज देखिएगा, उस टाइम पे दोज पीपल हु वर स्ट्रॉन्ग इन नेवी, दे कुड रूल द वर्ल्ड. Now things are changing. People who are countries who are strong in air, they are ruling the world. और एयर जितने भी एयरबोर्न टेक्नोलॉजी अभी आ रहे हैं, इंटरनेट इज एयरबोर्न टेक्नोलॉजी, प्राणिक हीलिंग इज एयरबोर्न टेक्नोलॉजी. इस एज में, कुंभ राशि के एज में, ग्रुप वॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखिए इंटरनेट की वजह से अब पूरी दुनिया छोटी सी एक विलेज जैसी बन गई है. वी आर सिटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर मीटिंग हियर. सो दिस इज बेसिकली एक्वेरियन एज का एनर्जी है. तो इसी तरह जोडियक के हिसाब से एज चेंज होता है, उसके हिसाब से उस एज का एनर्जी प्लैनेट अर्थ में मैनिफेस्ट होता है. आई होप आई कुड अंडरस्टैंड यू, मेक यू अंडरस्टैंड. एंड यस ज्योति, it covers all types of yoga. Okay, mostly कर्म योगा के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे in next session. Thank you for watching, and if you have any feedback, any question, you can put in the group that you are into. Okay, yes, कर्म योगा is going to be a very interesting part. आपको हम बहुत practical example के साथ we'll try to explain. Okay, so thank you everyone. Thank you for your valuable time, and please give your feedback. Atma Namaste. Let's give thanks. Thank you, Bhaiya. Thank you Atma so much Namaste, to the Supreme God.
Divine Father, Divine Mother, to all the holy gurus, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, to our beloved teacher, all the great ones, thank you for your help, guidance, and protection. Thank you everyone for joining. See you next Sunday. Atma Namaste.